अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये अशार और ये कहावतें आपने अक्सर सुनी होंगी कि कत्ल छुपाए नहीं छुपता, मुल्ज़मान आखिर कैफरे किरदार तक पहुंचते हैं। मैं इलाहाबाद के इलाके में मौजूद हूं, जहां पर एक मासूम बच्ची के वालिद को, वालदा को, इसके साथ साथ दोनों चचा को और भाई को मौत के घाट उतारा गया। 2005, 2016, उसके बाद 2020 और फिर 2023 में 2 लोगों को कत्ल किया गया, यानी 5 से 6 लोगों को कत्ल कर दिया गया। बच्ची आईजी साहब के पास पेश हुई, उसके बाद मुल्ज़मान कैसे गिरफ्तार हुए, आखिर कत्ल क्यों किया गया, आज के प्रोग्राम में आप यही जानेंगे। आइए मेरे साथ। आप है मुद्दई मुकदमा इस जो अभी हुआ है। हाँ जी, उससे पहले इतने मुद्दई कत्ल हुए हैं, तो आपको डर नहीं लगता? कुछ धमकी वगैरह दी उन्होंने जब आप? बहुत धमकियाँ दी। अच्छा, ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? ये 2005 से सिलसिला शुरू हुआ है। हाँ, इनकी वारदात करता सी अरशद नामी बंदा। इन्हें नूरपुर एक सेंगमटर 125 खोलिया, ठीक है। जिन्होंने पुलिस ने चढ़ाई की, इनकी माँ तो इनका माल लै गई। वो चौधरी लियाकत ने डेरा बनाया सी मंजे मंजे ते, उत्थे पुलिस बैठे। चौधरी लियाकत ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? मेरा बनोई है, अरशद का चाचे का पुत्र है। ठीक है। और पुलिस वाले उन्हें पानी पुनी पिया, पुलिस ने मंजी ला दी, मंजी बैठे डेरे थे। डेरे ये ना रखना है, तू मेरा चाचे का पुत्र था, तू पुलिस वाला पानी पिया, मेरी माँ की इज्जत पमाल हुई। पुलिस वाले गई, तू छड़ाया नहीं, तेरा इन्ना ना सी, थाने दरबार तो जाता था। वो कि झगड़ा हुआ है ना, झगड़े तो बाद सट्टा सुट्टा लग गई। 20 दिन पै ने, ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ 20-25 दिन पै ने। इन्हें 10-12 बंदे इकट्ठे किए थे, दोवें भरा अरशद ते असगर 12 बजे ने फायर मार दिते ने। अच्छा, पहले फायर 2005 च कत्ल हुए थे। दोवें प्यो दो बंदे कत्ल होए, प्यो पुत्र। अच्छा, ये उस बच्ची दे प्यो पुत्र सी ਜਿਹੜੀ पेश हुई सी अज? नहीं, उनका दादा सी, तो चाचा अच्छा, दादा ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। दादा ते चाचा। एक चाचा ਉਦੋਂ ਮਾਰਤਾ। हाँ, चाचा। अच्छा, 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ? 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਦਈ ਬਣ ਗਿਆ। ठीक है। ਉਹ ਕਿ ਮਦਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਦਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਚ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ठीक है। ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ 10-12 ਦਿਨ ਲਈ ਫਿਰੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 24 ਲੱਖ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਦੇ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ 302 ਦੇ। ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਪਰਚਾ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਭਰੀਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ 10-12 ਦਿਨ ਲਈ ਫਿਰੇ ਨੇ, ਤੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਲੱਖ 2014 ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਅਰਸ਼ਦ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਦਾ ਤੇ 24 ਲੱਖ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਠੀਮੁਰ। ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 2005 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ FIR ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਵੀ 24 ਲੱਖ ਦੀ FIR ਕਰਾਉਣ ਦੇ। 24 ਲੱਖ ਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪੜ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾੜ ਲਵੋ, ਅਸਲ ਟੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਮਰਨ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਜੱਗਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 3 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਚ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝੱਟ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 10-12 ਜਣੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 24 ਲੱਖ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਭਣੇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਾ 2 ਜੰਗ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਾਨੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਗਰ ਸੀ, ਜਾਫਰ ਡੋਗਰ, SHO ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, SHO ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਬੂਟਾ 302 ਦਾ ਮਦਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਛਾਤੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 2020 ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਅੰਦਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ 2020 ਚ ਕਤਲ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਕਰ- ਜਿਹੜੇ 2016 ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2016 ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 2020 ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ 2016 ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਨਾਮੀ 2005 ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਔਰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਹੈ 2016 ਚ ਵੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਗਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਦਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਦਈ ਲੱਤ 'ਚ ਟੁੱਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਮਦਈ ਦੀ ਵੀ ਅੰਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਦਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੇਗਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਰੇ ਬੇਗਨਾ 2020 ਚ ਕਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, 24 ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਿਸਟਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਸੀ 16 ਲੱਖ, ਇਹਨੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਫੜੀਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਨਾਮੀ 2022 ਚ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਰਜਨਟਾ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। DPO ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਯਾਦਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਲੇ ਬੱਚਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸਗਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਦਈਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਾਰ। ਇਹ ਅਸਗਰ ਪਿੱਛੇ ਧਮਕੀ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਾਸਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਆ ਗਿਆ। 2022 ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਸ਼ਦ ਮੈਂ FIR ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਮਦਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਥਾਣੇ, DPO ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਲਾਉਣੀ। ਅਸਗਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ। ਮੈਂ ਜਾਗੋ ਮੈਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਦੀ FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਰਾ ਮੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਲਕ ਇਫਤਖਾਰ, ਉਹਨੇ ਨੇ 17 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਵਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਜਾ। ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਆਦਾ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਕੀਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਡਰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨੂੰ 17 ਕਾਲਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਕਢਾਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ। 17 ਕਾਲਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਚੂਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟੂ ਚੌਂਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ 30 ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। FIR ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲਵੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਇਸ਼ਤਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਆਇਸ਼ਤਾਂ ਖੋ ਕੇ ਕਸੂਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਛਾ। ਹਸਪਤਾਲ। ਸਾਡੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਤੂੰ FIR ਕਰਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਗਨਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਹਗਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ FIR ਕਰਾਈ, ਮਦਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਦਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਮਾਂ ਕਤਲ ਹੋਈ, ਜਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦਾ ਬਾਪ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਚਾਚੂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 2 ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ IG ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। IG ਨੇ DPO ਨੂੰ, DSP, ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ SHO ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਪਰਵੇਜ਼, ਅਮਜਦ, ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਅਸਗਰ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ, ਵਕਾਸ। ਅਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਅਰਸ਼ਦ ਪਹਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਦ ਪਹਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾਬ ਕੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਫੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਕਮੁਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ SHO ਨਾਲ, DSP ਨਾਲ? ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ SHO ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਉਹ SHO ਜਾਫਰ ਡੋਗਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ 2005 ਦਾ ਛਾਤੀਆ ਸੀ ਨਾ, 2 ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਲਿਆਕਤ ਮਕਤੂਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਵਾਇਆ ਸਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਆਤਫ ਨਜ਼ੀਰ SHO ਇਲਾਹਾਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਰੇਂਜ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਤਲਬੀ 'ਚ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਸੂਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੇ। DPO ਕਸੂਰ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਫਰੇ ਕਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਾਇਤ ਹੁੰਦੀ है तो कत्लो गारत का सिलसिला ये जारी रहेगा। 18 साल से ये कत्लो गारत का सिलसिला जो है वो जारी है और जो भी मुद्दई बना, जो शहादती बना, गवाह बना, उसको कत्ल किया गया, ये आपके सामने। और 18 साल से कसूर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। IG साहब के हुक्म पे अब कसूर पुलिस जो है वो एक्शन में और गिरफ्तार है। जितनी आज़ादी तुम लोगों ने काट ली है। वालदा को पकड़ा होता तो मेरी भी वालदा है, मैं पूछता किसी से इसको क्यों पकड़ा, इसका अच्छा, क्या फिर क्या हुआ उसके बाद? उसको किसी ने नहीं पकड़ा। उसके बाद क्या हुआ? ना वालदा को पकड़ा है ना उसको पकड़ा। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, मैं उसके बाद अस्पताल आ गया, सर्विस अस्पताल। इधर आया, इधर से मेरे को लाहौर सर्विस अस्पताल भेज दिया। अच्छा। मैं उधर रहा हूँ अच्छा। तकरीबन 2-2.5 महीने। अच्छा। उधर से थोड़ा सही हुआ हूँ, अपना सामान पाया, इधर से कराची चला गया। कराची क्यों भागे तुम? इतने इतने मेरे बच्चे थे, 6 बच्चे थे मेरे पास। इनका कोई रखवाली करने वाला नहीं था। ये बच्चा छोटा था, ये वाला कौन सा? ये इसकी 23 साल उम्र है। हाँ। 18 साल का वकुआ हो गया। कितना 5 साल का ये था? 12 साल का था। 5 साल का था। ठीक है, 5-6 साल का बच्चा। तो तुम कराची चले गए? हाँ, मैं कराची। किस डर से कराची गए? भाई मेरे ऊपर नजायज ऐसे पर्चे होंगे तो मैं इधर फेस करूंगा पर्चों को, इन बच्चों को पालूंगा। अच्छा। बस मैं उधर से किसी लड़ाई से नहीं आया, ना किसी के साथ लड़ा हूँ, ना किसी को मारा है, ना किसी का चोरी किया है, ना किसी का कोई डाका डाला है। ओ भाईजान, मैं तो 20 साल किसी मुद्दई को खड़ा नहीं होने देते। शुगर का मरीज हूँ 20 साल से। भाई मुझे ना सुनाएं, जो आदमी शुगर मेरी का ना मरीज है, मेरी बात वो सुनो। ऐसी आप शुगर बातें के नहीं, मरीज ऐसा हैं, काम अल्लाह नहीं आपको करता है। सेहत दे, लेकिन मेरी हमदर्दी नहीं जागती ये बात सुन के, क्योंकि बहुत से लोगों का खून है आप लोगों पे। अब तो ज़ाहिर अदालत फैसला करेगी, करेगी, जो तफ्तीश होगी उसको पेश किया जाएगा, लेकिन हाजी बनने का नाटक ना करें। समझ रहे मेरी बात? मैं ऐसा किया नहीं है तो मैं कैसे हाजी नहीं बनूं? कोई जिस शख्स ने जुर्म किया नहीं है, ये तो सबूत कैसे बोलेगा? ये तो सबूत बताते हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं। कोई दुनिया में ऐसा चोर मुजरिम नहीं है कि जो अपनी चोरी मान ले, यो कल मैंने जुर्म किया है। इस पुलिस की हथकड़ी में जो भी आता है ना, वो कहता है कि भाई मैंने तो कह रहे मैं तो बड़ा सादा और मासूम आदमी। 2005 से लेकर 2023 तक मर्डर पे मर्डर करते रहे, पुलिस से बचते रहे, छुपते छुपाते रहे, भागते रहे। 18 साल के बाद बिलाखिर ये पुलिस की तहवील में आ चुके हैं और ये 2005 से मर्डर की कहानी जो है वो स्टार्ट होती है और उसके बाद 2023 तक जाती है। बिलाखिर पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। IG साहब ने इसका नोटिस लिया था और उसके बाद पुलिस ने सख्त एक्शन किया जिस पर ये गिरफ्तार हुए। क्या नाम है तुम्हारा? असगर अली। असगर, धमकियां देने वाला असगर। कौन सी, किसको धमकी? कॉल रिकॉर्डिंग सुन के आ रहा हूं मैं तुम्हारी कि जब तुम उनको धमकियां दे रहे हो, क्या मिलता है किसी को कोई धमकी नहीं दी है। ये क्या हुआ है 2005 से लेके 2023 तक? 2005 में जो है ना, मैं अपने घर से लहदा था, ये मेरे भाई का और चचाजाद भाई का झगड़ा हुआ आपस में, दोनों का नाली से झगड़ा हुआ। हाँ, नाली, छोटी सी बात पे। छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ। ठीक है। गांव वाला तकरीबन आधा गांव उधर इकट्ठा हुआ था, मैं भी चला गया उनको छुड़ाने के लिए। हाँ, कि लड़ाई झगड़ा नहीं करो। मैं उनको छड़ाया, छड़ाते छड़ाते मेरे सर में एक डंडा मार दिया, जो मेरे चचाजाद भाई थे उन्होंने। क्या नाम है? लियाकत वगैरह? लियाकत वगैरह। अच्छा। उसके बाद जनाब अरशद को एक फैर मार दिया राइफल का, पेट से इधर से लगा। तो अरशद ने भी मारा? पीछे से निकला। अरशद नहीं मारा था? मैं जो बात सुना रहा हूँ ना, नहीं, पहले बताओ, अरशद नहीं मारा था? नहीं, पहले लड़ाई वहां से स्टार्ट नहीं हुई कि जब उन्होंने पुलिस की रेड में मदद की, डेरे पे उन्होंने पुलिस को बिठाया, लियाकत ने? किसी ने नहीं बिठाया, ना पुलिस आई थी, ना भी पुलिस पे बात गई थी। ये तो पुलिस ने अरशद की वालदा को गिरफ्तार किया, अरशद को गिरफ्तार किया, उन पर इल्जामात थे। पहला झगड़ा हो रहा है। ये नाली वाली बात तो बाद में आती, चक्कर ना दें। मुलजिम का काम है चक्कर देना, अब नहीं बच सकते तुम। अब तुम्हारी जो प्रोसिक्यूशन होगी ना,
वो ठोस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हो। भाई ना उसकी जितना जितनी आज़ादी तुम लोगों ने काट ली है। वालदा को पकड़ा होता तो मेरी भी वालदा है, मैं पूछता किसी से इसको क्यों पकड़ा, इसका अच्छा, क्या फिर जुर्म क्या है? हुआ उसके बाद? उसको किसी ने नहीं पकड़ा उसके बाद क्या हुआ? ना वालदा को पकड़ा है ना उसको पकड़ा। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, मैं उसके बाद अस्पताल आ गया, सर्विस अस्पताल। इधर आया, इधर से मेरे को लाहौर सर्विस अस्पताल भेज दिया। अच्छा मैं उधर रहा हूँ अच्छा। तकरीबन 2-2.5 महीने। अच्छा उधर से थोड़ा सही हुआ हूँ, अपना सामान पाया, इधर से कराची चला गया हूँ। कराची क्यों भागे तुम? भागे इतने मेरे बच्चे थे, 6 बच्चे थे मेरे पास। इनका कोई रखवाली करने वाला नहीं था। ये बच्चा छोटा था, ये वाला कौन सा? ये? इसकी 23 साल उम्र है। हाँ 18 साल का वकुआ हो गया। कितना 5 साल का ये था? 12 साल का था। 5 साल का था। ठीक है, 5-6 30 साल का का बच्चा है। तो तुम कराची चले गए? हाँ, मैं कराची किस डर से कराची गए? भाई मेरे ऊपर नजायज़ ऐसे पर्चे होंगे तो मैं इधर फेस करूंगा पर्चों को, इन बच्चों को पालूंगा। अच्छा बस मैं उधर से किसी लड़ाई से नहीं आया, ना किसी के साथ लड़ा हूँ, ना किसी को मारा है, ना किसी का चोरी किया है, ना किसी का कोई डाका डाला है, ना किसी मेरे ऊपर को पाकिस्तान में इसके अलावा, इस झगड़े के अलावा कोई ये वो लोग हैं जो मुद्दईयान को, गवाहों को धमकियां देते थे। ये कहते हैं कोई पर्चा ही नहीं है। पर्चा कैसे होगा जब आप मुद्दई और गवाह को धमकी देंगे? भाई भाई मैं किसी मुद्दई और गवाह को धमकी दी नहीं है। यार, यहाँ पे आके ना पंजाब पुलिस के पास एक नुस्खा है। पंजाब पुलिस के हिरासत में कोई बंदा आता है ना, वो सबसे बड़ा हाजी नमाजी बन जाता है। भाई दी नहीं है, उससे पहले वो बड़ा बदमाश होता है। सोशल मीडिया पे देख लें कि वो असले की नुमाइश भी करता है, ये कौन? वो वैसे देख लें दंदनाता फिरता है, लेकिन जैसी हथकड़ी लगती है ना और पंजाब पुलिस की तहवील में आता है, वो बड़ा शरीफ और सादा बन जाता है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। वो आपकी बात सही है। सही है ना? हाँ, मैं ये तो अब तुम ये बता रहे हो कि तुम बड़े हाजी हो, तुम्हारे पूरे ऊपर कोई पर्चा नहीं है। तो मेरा ये कोई वो जुर्म लोग नहीं है। हैं जो 2005 से लेकर 2023 तक कोई मुद्दई नहीं बनने देते थे। जो गवाही देता था उसके घर पहुंच जाते थे धमकियां देने के लिए। कौन? ये तो पूरा इलाका कहता है यार, मैं तो नहीं कहता। कोई गवाह बोले, पूरे इलाका सबूत दिखाए। बोले कैसे भाई? अब तो तुम आ गए हो ना, अब बोलेंगे लोग। आप बोले। अब तुम्हारे हथकड़ी लग गई है, अब बोलेंगे। बोलने भाई, पहले आपने एक बोलने बंदा- नहीं दिए। एक बंदा भी बोले भी मेरे को इसने रोका है गवाही से। मैं क्या कई इसने लोगों से मेरे को सॉर्ट धमकी करके दी? आ रहा हूँ। मैं कई लोगों से सॉर्ट करके आ रहा हूँ गाँव के। भाई जिधर जो मदई है ना उन पर्चों के, उनसे ही है ना धमकी की बात। मैं किसी से बात ही नहीं की है। बात नहीं करता था, गोली बात करती थी। तब तो बड़ी धमकी लगाते थे। किसको? पंजाब पुलिस को सल्यूट है भाई, जिसने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। आपका भी ओ भाई जान, मैं तो 20 साल किसी मुद्दई को खड़ा नहीं होने देते। शुगर का मरीज हूँ 20 साल ओ से। भाई मुझे ना सुनाएंगे, जो आदमी मुझे शुगर मेरी का ना मरीज है, मेरी बात वो सुने। ऐसी आप शुगर बातें के नहीं- मरीज ऐसा हैं, काम अल्लाह नहीं आपको करता है। सेहत दे, लेकिन मेरी हमदर्दी नहीं जागती ये बात सुन के, क्योंकि बहुत से लोगों का खून है आप लोगों पे। अब तो ज़ाहिर अदालत फैसला करेगी, करेगी। जो तफ्तीश होगी उसको पेश किया जाएगा, लेकिन हाजी बनने का नाटक ना करें। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं ऐसा किया नहीं है तो मैं कैसे हाजी नहीं बनूं? कब कोई जिस शख्स जिस ने बंदे ने जुर्म किया हो, नहीं है, ये तो वो सबूत कैसे बताते हैं। बोलेगा? ये तो सबूत हाँ, बताते हैं ना। सबूत ये तो आप बताएगा। कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे भाई, हैं। सबूत कोई दुनिया में बताएगा। ऐसा चोर मुजरिम नहीं है कि जो अपनी चोरी मान ले, यो कल मैंने जुर्म किया है। इस पुलिस की हथकड़ी में जो भी आता है ना, वो कहता है कि भाई मैंने तो किया नहीं, मैं तो बड़ा सादा और मासूम आदमी। 6 कत्ल कैसे हो गए? मुझे नहीं पता, मैं छोटा था। 2005 में 2, 2016 में जख्मी किया, लियाकत वगैरह को शोरूम पे फायरिंग की, हल्ला बोला। उसके बाद 2020 में उनका मर्डर किया। 2 अभी 2023 में आप लोगों ने किए। कैसे हो गए? जब 2005 पूरे गांव को पता है आप लोगों की दुश्मनी है। पूरे गांव को पता है ना, आपको ही पता है कि दुश्मनी है। उनके ही मरे हैं लोग। वकील को धमकाया इन्होंने 17 बार कॉल करके कि आप पेश ना हो, आपके बच्चों को उठा लेंगे। ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं ना मासूम, ये इस वक्त दाद देनी चाहिए। ये वाकई सॉफ्टवेयर अपडेट करने में हमारी पुलिस बड़ी माहिर है। अब ये मासूम इसलिए बने हुए हैं कि आपको ये चेहरा नजर आए, बिल्कुल मासूम है, और ये दंदनाता फिरता चेहरा है। सफाक, मुलजिम, कातिल। मेरी गलती है, मैंने गलती, अब गलती है। पहले कहते मैंने नहीं किया, अब गलती हो गई। क्या तालीम का किया है तुमने? एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के मुतरातिब है। हदीस सुनी है? जी सुनिए। किसी ने पढ़ाई होगी ना आपको, तो फिर ये कैसी ये इंसानियत है आप लोगों में? आपने तो इकट्ठे मर्डर कर दिए, खानदान का खानदान तबाह कर दिया। उस बच्ची के दादा, 2 चचा, उसका भाई, क्या छोड़ा उसके पल्ले? जब उसके दादा चचा मरे, हम छोटे छोटे थे, हमने थोड़ी मारे। हाँ, तो बड़े होके तुमने उस वक्त फैसला किया मैं बड़े होके मारूंगा, उस वक्त फैसला किया था। शर्म आती है आपको? ये बच्चों की तरबियत की आपने? क्यों भाई जान शर्म आएगी? मैं शर्म ही नहीं मारा आती। नहीं किसी- बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं मारा नहीं इस किसी को। बच्चे ने वहां पे साथ था ये बच्चा, और तुम शर्मिंदा होने के बजाय तुम आगे से हठधर्मी के साथ जवाब दे रहे हो।
लड़ाई नाली पे हुई थी और निकासी पे हुई थी, तो उसके बाद जो है वो 2 लोगों को कत्ल कर दिया गया था। वो उस बच्ची के जो आईजी साहब के पास पेश हुई थी, उसके दादा को और उसके चचा को, और एक चचा को बाद में मारा गया। क्या नाम है तुम्हारा? शहजाद। पढ़े हुए हो? जी, कितनी? इंटर किया मैंने। इंटर ना करते यार, आप गवा दी आपने पढ़ के, हैं? गवा दी ना। तालीम हासिल करने की। क्या तालीम हासिल की है तुमने? रद्दी की टोकरी में डाल दो अपनी डिग्रियां। इंसानियत तो है नहीं आप में। यह है इंसानियत आप में? सब इंसानों में है? इंसानियत है क्यों नहीं? क्या है? होती तो हथकड़ी में खड़े होते। इंसानियत होती तो इस तरह से आप दूसरों को ज़लील और रुसवा करते। इंसानियत होती तो इस तरह से लोगों पे हमले करते। 6 कत्ल कैसे हो गए? मुझे नहीं पता, मैं छोटा था। 2005 में 2, 2016 में जख्मी किया, लियाकत वगैरह को शोरूम पे फायरिंग की, हल्ला बोला। उसके बाद 2020 में उनका मर्डर किया। 2 अभी 2023 में आप लोगों ने किए। कैसे हो गए? जब 2005 पूरे गांव को पता है आप लोगों की दुश्मनी है। पूरे गांव को पता है ना, आपको ही पता है कि दुश्मनी है। उनके ही मरे हैं लोग। अबाऊ जदाद की दुश्मनी है। किस बात पे है बेटा? मुझे नहीं पता, जब हम छोटे छोटे थे, हमें उस वक्त 2005 की बात है। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि अबाउजदाद बैठ के सुलहनामा कर लें? मेरे कुरान वालिद पे हाथ रख के एक सुलहनामा भी हुआ था। मेरे वालिद साहब ने बहुत कोशिश की है। ये 2023 में जो मर्डर हुए हैं, जब वो आ रहे थे उस पर तुम इन्वॉल्व हो। जी, क्यों? फायरिंग करने का किसने कहा था? मैंने फायरिंग नहीं की। साथ थे? मैं छोटे भाई का डोमिसल लेने आया था। बड़ा काम है। अच्छा, फिर? वो अरसलान और हम दोनों मुझे मिले। उन्होंने कहा बाइक चलाओ, काम जाना है। वो मुझे साथ ले गए। जब इनके पास से गुजरे तो उन्होंने फायरिंग कर दी। नहीं, मैं अदालत से वापस आ रहे थे 2023 में जो मर्डर किए 2 वो अदालत से गए होंगे, लेकिन मैं इधर। होंगे। सबको पता था आज पेशी है। वकील को धमकाया इन्होंने 17 बार कॉल करके कि आप पेश ना हो, आपके बच्चों को उठा लेंगे। ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं ना मासूम, ये इस वक्त दाद देनी चाहिए। ये वाकई सॉफ्टवेयर अपडेट करने में हमारी पुलिस बड़ी माहिर है। अब ये मासूम इसलिए बने हुए हैं कि आपको ये चेहरा नजर आए, बिल्कुल मासूम है, और ये दंदनाता फिरता चेहरा है। सफाक, मुलजिम, कातिल। मेरी गलती है। मैंने गलती, अब गलती है। पहले कहते मैंने नहीं किया, अब गलती हो गई। क्या तालीम का किया है तुमने? एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के मुतरातिब है। हदीस सुनी है? जी सुनिए। किसी ने पढ़ाई होगी ना आपको। तो फिर ये कैसी ये इंसानियत है आप लोगों में? आपने तो इकट्ठे मर्डर कर दिए, खानदान का खानदान तबाह कर दिया। उस बच्ची के दादा, 2 चचा, उसका भाई, क्या छोड़ा उसके पल्ले? जब उसके दादा चचा मरे, हम छोटे छोटे थे, हमने थोड़ी मारे। हाँ, तो बड़े होके तुमने उस वक्त फैसला किया मैं बड़े होके मारूंगा। उस वक्त फैसला किया था। शर्म आती है आपको? ये बच्चों की तरबियत की आपने? क्यों भाईजान शर्म आएगी? मैं शर्म ही नहीं मारा आती। बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं मारा नहीं इस किसी को। बच्चे ने वहां पे साथ था ये बच्चा, और तुम शर्मिंदा होने के बजाय तुम आगे से हठधर्मी के साथ जवाब दे रहे हो। ये भी आप भी भाई हो इनके? जी। अच्छा, कितने बड़े इनसे? क्या नाम है? विकास। वकास। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया सर। सहूलतकारी? नहीं सर। छुपाया इन्हें? नहीं सर। आपको पता था ये सब हो रहा है? नहीं सर। कैसे मतलब खबर ना हो कि इतना कुछ? भाई ये घर से निकला है, डोमिसल लेने के लिए आया। इसने बताया मैं डोमिसल लेने जा रहा हूँ। मैं अपने हौजरी में काम करता हूँ, फैक्ट्री में, वहाँ चला गया हूँ। तो जब बाद में हमारे ऊपर FIR हुई, पता चला तो ये संभले साथ में। कितने नन्हे मुन्ने काके हैं ये सब कि इनको बाद में पता चलता है। ये बाद में पता चलती है, हैं? एक तोते की तरह, जो तोते को रटाई जाती है ना चीज़ें, वही ये जो शातिर आदमी ना असगर, ये गो के इसका वालिद हैं, इसको चाहिए था कि इनकी तरबियत ठीक करता। खुदा की कसम आपको चाहिए था इन झगड़ों से दूर रखते। और भाईजान उन्होंने लियाकत ने जो काम किए हुए हैं ना, लोगों के साथ फरार किए हुए तो हैं, मैं कहता हूँ कि उसने या सब जो कुछ किया हुआ है। कत्ल किए हुए हैं, मैं कहता हूँ मेरे भाई, अभी आप उसने सब कुछ किया हुआ है। आप पुलिस है ना, निज़ाम इंसाफ है ना, हाँ जी। निज़ाम अदल है ना, किसने कहा अपनी अदालत लगाने को? हाँ, बात सुनो। किसने कहा आपको अपनी अदालत बात लगाने तो को? सुनो मेरी, बात मैं क्या कौन सुनूं सी मैं? अदालत लगाऊंगा? अदालत ये अदालतें लगाई आप लोगों ने, अपने बेटे से कत्ल करवा दिए, उनको इन्वॉल्व कर लिया सारा, किसी की सब्जियां लगा दी, टांगे तोड़ रहा है, वो उनको तो और पूछेंगे। जो शोरूम में जाके जो आप लोगों ने टांगे तोड़ी, जिनको वो मार आपने रहा बस से गिरा के मार वो भी दिया। उनको मार सकते हैं। एक इन्होंने एबडक्शन किया है, मतलब इन्होंने अगवा किया है शेखुपुरा में, अरशद नामी शख्स ने, जो मेन आदमी है, जो पहले से जेल में है। उस वक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और बच्चा बाजियाब करवाया। ये लोगों के बच्चे उठाते रहे हैं। इसका भाई, ये उसका बड़ा भाई है, छोटा असगर अरशद,
कोई एक भाई को जुर्म करता है, दूसरे का मुझे क्या एक कसूर? बात बता दें कि अरशद आपका छोटा भाई है कि हाँ, बड़ा है? भाई है छोटा। जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप जुर्म में उसका साथ दें तो आप मुजरिम हैं। तो मैं साथ नहीं दिया उसको। क्यों नहीं दिया? मैंने कॉल सुनी आपकी, कॉल पे कैसे धमकियां दे रहा है। इस शख्स ने कॉल की थी कि ये पेश ना हो वकील, वकील को 17 कॉल्स किए हैं, इसका सारा CDR मौजूद है। एक भी की होगी ना तो मैं फांसी के अच्छा, आपको क्या पता है? बोलेगा तो उसकी आपको पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं पता था। घर में कोई डिस्कस नहीं होती थी। वालदा कभी समझाती थी कि यार इन चीज़ों से दूर रहो? कभी को समझाया? इन्होंने समझाया आपको? हम दूर ही रहे सर, हमने कुछ भी नहीं किया। मैं पहले कराची में काम करता था, जब मेरे पे वो लियाकत वाली FIR हुई थी ना, उस टाइम मैं कराची में काम कर रहा था। बेटा ये तो साथ था उनके। लेकिन ये इसकी गलती है, इसने अभी इग्नोर किया, लेकिन इसको नहीं करना चाहिए था। घर पे भी नहीं बता के आया कि मैं ये काम, जब ये कर लिया ये काम, फिर भी नहीं बताया घर पे। अरसलान और रहम आपके क्या लगते हैं? वो एक पुप्पी का बेटा है और एक चाचू का बेटा है। वो दोनों इसके साथ? जी और आप लोगों को नहीं पता था कि उन्होंने ये काम कर दिया? जी, हमें नहीं पता था। आपको भी नहीं पता था? नहीं, मुझे तो उन्होंने इधर से लेके गए, जब उन्होंने कर लिया फिर मुझे पता लगा। बस करने के बाद जो है वो सारा मामला जो है वो आपके सामने है। 18 साल के बाद ये मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और अब यकीनन जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, ये साहब जो बात करें कि इनको कुछ नहीं पता, जो पूरा इन्वॉल्व रहे इस सारे मामले में और बाकायदा तौर पे इंस्ट्रक्शंस देते रहे, बाकायदा तौर पे कॉल्स पे धमकियां देते रहे, ये लाख कहें। अभी जो पुलिस की तफ्तीश होगी ज़ाहिर अदालत में पेश होगा और यकीनन जो है वो इंसाफ मिलेगा उस बेटी को कि जो रो रो के सिसक के इंसाफ तलब कर रही है इस निज़ाम से। तो असगर जो है वो इलाके के और लोगों को भी एंगेज करता है इसमें। वो आसिया बीबी के पास लोगों को भेजता है कि आप आसिया बीबी को डराएं, जाके उसको मजबूर करें वो हमसे जैसे ये सुलह। पहले करते आए हैं। जी जी, कि हमारे साथ सुलह कर लें वरना आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो आसिया बीबी किसी बात पे एग्री नहीं होती, वो सुलह नहीं करती। तो 23 फरवरी 2023 को उसी केस के सिलसिले में अरशद भी तारीख पे आया होता है कसूर जेल से। तो वो वापस जा रही होती है तारीख पेशी से, तो बाईपास पे जो इसी सिटी चूनिया के एरिया में उसको मर्डर कर दिया जाता है और उसके बेटे को भी मर्डर कर दिया जाता है। तो हमें जल्द ही मालूम, इनकी जो लोकेशन है वो मालूम हो गई कि अब ये जिस एरिया में थे वो हमें पता चल गया। तो हमने अपनी जो स्पेशल टीम थी बड़ी सीक्रेटली हमने उसको इस्टेब्लिश किया और जिस एरिया में इनकी मूवमेंट थी वहाँ पे हमने उनको इंस्टॉल कर दिया, फील्डिंग वगैरह लगा दी। हम तकरीबन 48 घंटे उस एरिया में मौजूद रहे। 2 लोगों की जो मौजूदगी थी वो हमें मालूम होगी, लेकिन जो तीसरा मुलज़म था उसकी जो मूवमेंट थी वो हमें मैसर नहीं हुई। तो हमने थोड़ा सा उसका वेट किया। जब ये तीनों मुलज़म इकट्ठे हो गए तो हमने अपनी लीड टीम और दीगर जो फोर्सेस थी उसके साथ हमने इनको रेड करके पकड़ लिया। तकरीबन 18 साल बाद ये हमारे गिरफ्त में आ गए। मुल्ज़मान इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। मुल्ज़मान ने क्या एतराफ़ात किए हैं वो और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुँची है और उसमें क्या इंकशाफात सामने आए, इस बारे में बात करेंगे। मोहम्मद असलम भट्टी साहब जो SHO हैं चुनिया के, जो ये सारे मामले को इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर भट्टी साहब ये बताइएगा कि ये क्या मामला है जो शुरू हुआ 2005 से और उसके बाद क्या हक़ाइक़ हैं और एतराफ़ात क्या किए हैं इन लोगों ने? ये असल में जो मामला है ये मस्तूबाल गांव है इधर तहसील चूनिया में। यहाँ पे 2 भाई रहते थे, एक का नाम था दाऊद और एक का नाम था अमीन। ये दोनों सक्के भाई थी। इनकी औलादों में आपस में झगड़ा शुरू होता है और झगड़े के दौरान अमीन जो और उसका बेटा जो अल्ताफ़ है वो मर्डर हो जाते हैं और FIR दर्ज होती है असगर और ये जो दाऊद है इन पे। उसमें अरशद भी है और बाकी कुछ लोग और होते हैं। उसके बाद कुछ लोग तो पकड़े जाते हैं, लेकिन ये जो मेन मुलज़म है जिसमें अरशद है, असगर है और दीगर जो दाऊद वगैरह जो इस इलाके से फ़रार होकर तो कराची में चले जाते हैं, उधर रूपोश हो जाते हैं और मुकदमे को फेस नहीं करते। उल्टा वो जो मुद्दई होते हैं उनको धमकियाँ लगाना शुरू कर देते हैं। फिर ऐसा होता है कि वो दोबारा जो उस मुकदमे का मुद्दई होता है लियाकत, जिसमें अमीन और अल्ताफ़ मर्डर हो चुके होते हैं, उन पे दोबारा वो 2016 में इलाहाबाद के एरिया में अटैक करते हैं। उन पे मुद्दई है लियाकत, ये ज़ख्मी हो जाता है, इसकी टांगों पे फायर लगते हैं और इसका बेटा अहमद वो भी ज़ख्मी हो जाता है, उसके बाजू पे फायर लगता है। ये जो शोरूम पे अटैक हुआ? जी जी, लेकिन जान उनकी बच जाती है, ज़ख्मी वो शदीद हो जाते हैं। दोबारा ये इधर से इस हमले के बाद दोबारा इधर से गायब हो जाते हैं
उसके बाद दोबारा ये ऐसा करते हैं कि दोबारा 2020 में इन पे दोबारा हमला करते हैं, लियाकत को मर्डर कर देते हैं। उसके बाद जो लियाकत की बीवी होती है आसिया बीबी और उसका बेटा जो होता है अहमद, आसिया जो है वो मुकदमे की मुद्दइया बनती है, अहमद जो आई विटनेस के तौर पे सामने आता है। उसके बाद दोबारा ये मुद्दइया को थ्रेट करना शुरू कर देते हैं कि आप मुकदमे की पैरवी छोड़ दें वरना हम आपको भी कत्ल कर देंगे। और इसके अलावा जो इसका भाई अरशद होता है वो भी थ्रेट करता है, क्योंकि वो इस किसी और मुकदमे में गिरफ्तार होकर वो जो शेखुपुरा में अगवा वाली वारदात उसने की थी, शेखुपुरा में वो अरेस्ट हो जाता है एक किडनैपिंग केस में, वहाँ से कसूर शिफ्ट हो जाता है, उसके ख़िलाफ़ जो है ना मुकदमा ट्रायल शुरू हो जाता है। वो अपने भाई से रब्ता करता है कि आप किसी तरीके से इस केस को ख़त्म करवाएं, आसिया को बिठाएं या उसको थ्रेट करें, ये मेरे ख़िलाफ़ तो केस जो है ना वो मनतकी अंजाम तक पहुँचने वाला है और मैं सज़ा हो जाऊँगा। तो असगर जो है वो इलाके के और लोगों को भी एंगेज करता है इसमें। वो आसिया बीबी के पास लोगों को भेजता है कि आप आसिया बीबी को डराएं, जाके उसको मजबूर करें वो हमसे जैसे ये पहले करते आए हैं। जी कि हमारे साथ सुलह कर लें वरना आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो आसिया बीबी किसी बात पे एग्री नहीं होती, वो सुलह नहीं करती। तो 23 फरवरी 2023 को उसी केस के सिलसिले में अरशद भी तारीख पे आया होता है कसूर जेल से, तो वो वापस जा रही होती है तारीख पेशी से, तो बाईपास पे जो इसी सिटी चूनिया के एरिया में उसको मर्डर कर दिया जाता है और उसके बेटे को भी मर्डर कर दिया जाता है। और काफ़ी ज़्यादा उसको इंजरीज़ वगैरह आती हैं और काफ़ी बुलेट्स मारते हैं उसको ये लोग। तो पुलिस अपनी ये जो ज़ाहिर है जितना बड़ा वक़ूआ होता है तो पुलिस के लिए बड़ी एक चैलेंजिंग वाली सूरत हाल होती है। DPO साहब कसूर जो हैं तारिक अजीज़ संधू साहब इस मामले का बड़ा सख्त नोटिस लेते हैं। पुलिस पार्टी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम है अपनी कार्रवाई शुरू करती है। सबसे पहले जो क्राइम सीन यूनिट है हमारा ज़िले का, उसके बाद PFSA की टीम लाहौर से मंगवाई जाती है और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जाए वक़ूआ पर पहुँचती है कत्ल पे और अपनी तफ्तीश का आगाज़ करती है। सबसे पहले जो क्राइम सीन होता है उसमें जो मौजूद शवाहद होते हैं उनको महफूज किया जाता है और क्राइम सीन और यूनिट और जो PFSA वो भी जो एविडेंसेस होती हैं उनको कलेक्ट करती हैं। उसके बाद जो इधर CCTV कैमरा इंस्टॉल होते हैं उनकी जो वीडियोस वगैरह हैं वो भी कब्ज़े में ली जाती हैं। जहाँ पे वक़ूआ होता है उसकी जियो फेंसिंग करवाई जाती है, CDRs वगैरह हासिल करके उनका जो अपना एनालिसिस शुरू किया जाता है और उसके बाद जो पुलिस रेडिंग टीम्स तश्कील दी जाती हैं वो भी अपना काम शुरू करती हैं और जो उस एरिया होता है उसमें जो इर्द गिर्द तकरीबन 100 के करीब सस्पेक्टेड हाउस हैं उनका सर्च ऑपरेशन किया जाता है कि मुलज़मान शायद छुपे और काबू आ जाएं। लेकिन मुलज़मान बड़े शातिर होते हैं, वो वक़ूए के बाद इस एरिए से चले जाते हैं। हमारे इस चूनिया तहसील में हमने तकरीबन जो भी जहाँ भी हमें शक था हमने वहाँ रेड किए और तकरीबन चूनिया तहसील में हमने 50 के करीब रेड किए। जहाँ भी पॉसिबल अवेलेबिलिटी हो सकती थी मुलज़मों की हमने वहाँ रेड किए, लेकिन ये मुलज़म हमें इधर दस्तयाब नहीं हुए। तो हमने थोड़ा अपनी कार्रवाई को वसी करते हुए दूसरे ज़िला में जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी जैसे जैसे हमें मिली हमने रेड किए। उसमें हमने जेलम रेड किया, फैसलाबाद रेड किया, बहावलपुर रेड किया, रिनाला ये उकाड़ा का एरिया, जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती रही आप रेड करते रहे? जी रेड करते रहे। उसमें 3 थानों की पुलिस और CIA जो थी वो भी हमारे साथ शामिल थी। तो हमने आज़ाद कश्मीर जो मीरपुर है वहाँ पे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमने वहाँ भी रेड किया। उसके बाद ऐसा होता है कि ये अरशाद जो मुद्दई है उसको ये जो है असगर ये एक मोबाइल नंबर से इसको फ़ोन करता है और धमकी लगाता है कि आप लोग जो ये मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करवा रहे हैं इसको बंद करें वरना मैं आप लोगों को भी कत्ल कर दूँगा और अब आपकी बारी है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मुद्दई की तरफ से हमें पुलिस को मिलती है तो हम जो उसके नंबर पे जिससे कॉल आती है उस पर हम अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। तो ये बात सामने आती है कि असगर ने कराची जो मेट्रोवेल एरिया है, साइट एरिया कराची, वहाँ से कॉल की है। उस एरिया की लोकेशन ट्रैक होती है। तो हमारी टीम उस लोकेशन पे वर्क करते हुए कराची तक इनके पीछे जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ जाने से पहले ये लोग उस एरिए से गायब हो जाते हैं। ठीक है। और हमारी टीम जो उधर तकरीबन 1 हफ़्ता स्टे करके तो वापस आ जाती है। उसके बाद हम दोबारा वापस आते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मुलज़मान लाहौर में एक जगह पे मौजूद हैं। असगर तो नहीं लेकिन इसके 2 बेटे उधर मौजूद हैं, अगर वहाँ रेड किया जाए तो ये पकड़े जा सकते हैं। तो हमने वहाँ पे लाहौर में भी ट्रैकर लेके लोकेटर लेके तो हमने वहाँ पे रेड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो लोकेटर है वो हमें उसमें कामयाबी नहीं हासिल हुई। वो मुलज़मान की जो लोकेशन थी वो ऐसी गलियाँ थी जहाँ पे लोकेटर जो है ना उसकी ट्रैवलिंग या उसकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है।
हमने लेकिन इनका जो जहाँ पे ये रिहाइश पजीर थे उस घर तक हम पहुँच गए। वहाँ से हमें कुछ नए टेलीफोन नंबर्स, इनके आईडी कार्ड और दीगर जो इनका सामान है वो हमें मिल गया। वहाँ से कुछ हमें ऐसे क्लू मिले कि हमने वापस आके दोबारा उस पर नए सिरे से वर्किंग शुरू की। तो हमें जल्दी मालूम, इनकी जो लोकेशन है वो मालूम हो गई कि अब ये जिस एरिया में थे वो हमें पता चल गया। तो हमने अपनी जो स्पेशल टीम थी बड़ी सीक्रेटली हमने उसको इस्टेब्लिश किया और जिस एरिया में इनकी मूवमेंट थी वहाँ पे हमने उनको इंस्टॉल कर दिया, फील्डिंग वगैरह लगा दी। हम तकरीबन 48 घंटे उस एरिया में मौजूद रहे। 2 लोगों की जो मौजूदगी थी वो हमें मालूम होगी, लेकिन जो तीसरा मुलज़म था उसकी जो मूवमेंट थी वो हमें मैसर नहीं हुई। तो हमने थोड़ा सा उसका वेट किया। जब ये तीनों मुलज़म इकट्ठे हो गए तो हमने अपनी एलीट टीम और दीगर जो फोर्सेस थी उसके साथ हमने इनको रेड करके पकड़ लिया। तकरीबन 18 साल बाद ये हमारे गिरफ्त में आ गए। तो ये सर एतराफ़ क्या किया इन्होंने, जो इंकशाफात हैं तफ्तीश में? ये जो असगर है ये पुलिस में बतौर कांस्टेबल इसने ड्यूटी की लाहौर 3-4 साल और बेसिक ट्रेनिंग भी इसने ली हुई है पुलिस की। तो ये पुलिस की वर्किंग को बड़ी समझता है और ये इसी वजह से तकरीबन 18 साल इधर से पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, क्योंकि इसको पुलिस की वर्किंग का कुछ आइडिया था और इसको पता था कि पुलिस जब वक़ूआ होती है तो बहुत तेज़ी के साथ मुलज़मों का पीछा करती है और उनको पकड़ने की कोशिश करती है। और उस टाइम में ये जो मुलज़म थे ये अपने आप को बिल्कुल मोबाइल वगैरह यूजेज बंद कर देते थे, किसी से रब्ता नहीं करते थे और नामालूम जगह पे छुप जाते थे। उसके बाद आस्ता आस्ता वक़ूए के कुछ अर्से बाद पुलिस की जो वर्किंग है वो आस्ता आस्ता स्लो हो जाती है, तो ये लोग दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। जब इनको गिरफ़्तार किया तो इन्होंने तो पहले तो बिल्कुल इनकार किया, लेकिन हमारी तफ्तीश में जो हमारे पास शवाहद थे, CCTV वीडियो थी और जो CDRs और उसमें जो अब हमने इनके सामने रखी ये चीज़ें, तो इनमें से ये जो शहजाद है ये भी वक़ूए में शामिल है। इसके अलावा अरहम इनका एक अज़ीज़ है, जो अरशद है जेल में इसका भाई असगर का उसका बेटा है। इसके अलावा इनका सक्का भांजा है वो भी वक़ूए में शामिल है, वो CCTV वीडियो उसकी आई है। बाकी ये मुलज़मान भी वक़ूए में उसकी जो मैनेजमेंट है और उसमें पूरे शामिल हैं। वो हमारे पास ऐसी मजबूत जो फ्रांसिक एविडेंस मौजूद है, हम इनके ख़िलाफ़ एक केस तैयार करके अदालत में भेजेंगे। बाकी इनमें पार्शली इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी और इंसाफ होगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।